نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے نبی رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ دے اور یقیناً ہم خوش قسمت لوگ ہیں جن کے زندگی میں رمضان جیسا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر آیا ہے۔ ایسے نبی رمضان کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں کہ جن کا شمار جو ہے وہ اگر ہم کرنا شروع کریں تو ہم سے نہیں ہوتا۔ رمضان تو ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کی ادائیگی جو ہے وہ 70 فرض کی ادائیگی کے برابر جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ رمضان المبارک کے جو روزے رکھتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، پورا سال جنت اس کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس میں سے روزہ دار داخل ہوگا۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بھی آمین کہا کہ نیست و نابود ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ نزدیک ہمیں آج کے اس انتہائی بابرکت افطار کے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب، جامعہ گلزار مدینہ مسجد سے ان کا تعلق ہے، اور انتہائی معتبر شخصیت ہے ہمارے ضلع کی، اور انتہائی قابل احترام شخصیت ہے۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی، الحمدللہ۔ قاری صاحب کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ جی الحمدللہ، اس مالک کا بڑا ہی کرم ہے، اس کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے بڑی مہربانی فرمائی، اس کی توفیق سے الحمدللہ اچھا رمضان شریف گزرا ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج ہماری خوش بختی ہے کہ فیضان مدینہ سے ننھے ثنا خان محمد انس عطاری صاحب موجود ہیں، اور جامعہ جلالیہ سے محمد حامد رضا صاحب جو ہے وہ موجود ہیں۔ دونوں ننھے ثنا خان ہیں، اور یقیناً میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ میرے رب کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے، میری آقا کی عنایت ہوتی ہے جو لوگ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آج یہ ہم بارگاہ رسالت میں نعت پڑھیں گے۔ ناظرین گرامی، حسب سابق حسب روایت آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ کلام سے کرتے ہیں، اس کے بعد قاری صاحب بیٹھے، ان سے رمضان کے فضائل کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا۔ میں محمد انس عطاری سے ملتمس ہوں۔ محمد انس عطاری کون سا کلام سنائیں گے؟ اردو کلام کون سا؟ یہ جو سرکار کے ہم لوگ سنا کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کہتے ہیں، یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کہتے ہیں، یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کرتے ہیں، اپنے دکھ درد کی در اصل دعا کہتے ہیں، اپنے دکھ درد کی در اصل دعا کہتے ہیں، یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں جلتے ہیں جو دن رات ان کے، عشق کی آگ میں جلتے ہیں جو دن رات ان کے، نام ان کے ہی زمانے میں ہوا کرتے ہیں،
میں ہوا کرتے ہیں، یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کرتے ہیں، وہ ابو بکر و عمر اور وہ عثمان و علی، سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر و عمر اور وہ عثمان و علی، ہم نہیں لوگ جو ان سے جلا کرتے ہیں، ہم نہیں لوگ جو ان سے جلا کرتے ہیں، یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کرتے ہیں، یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کرتے ہیں، آل زہرا کی غلامی میں ہمیں موت آئے، آل زہرا کی غلامی میں ہمیں موت آئے، ہم تو احمر یہی دن رات دعا کرتے ہیں، ہم تو احمر یہی دن رات دعا کرتے ہیں، یہ جو سرکار کی ہم لوگ ثنا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تیرا ذکر سے میری آرزو، میرے لب پہ ہے تیری گفتگو، تیرا نام ہے قرار جاں، تیری نعت ہے میری زندگی۔ حضرت گرامی، انتہائی خوبصورت کلام ادائیگی، بہت خوبصورت مکمل کلام تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بھی تھا، صحاب سے عقیدت بھی تھی، اور اہل بیت کی غلامی کا تذکرہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی آواز میں مزید سود و بدا عطا فرمائے، مزید نکھار عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس پروگرام میں نشید فرما ہے قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب، پہلے عشرے کی دعا جو ہے وہ بھی بتائیے گا، اور پہلے عشرے کی اہمیت اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عشرہ ماہ رمضان المبارک کا، ویسے تو سارا ماہ رمضان المبارک ہی اس میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں ہیں، یہ خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ تو پہلا عشرہ اس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو پہلے عشرے میں ہم دعا جو کرتے ہیں، جو مسنون دعا ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اس کا بڑا ہی پیارا معنی یعنی کہ ترجمہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے، رب اغفر، کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میری بخشش فرما، وارحم، اور تو رحم فرمانے والا ہے، وانت خیر الراحمین، اور یا اللہ تو سب سے بڑھ کے بہتر رحم فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک، اس میں اللہ رب العزت جب سے یکم رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اب رحمتوں کی گھڑیاں آ گئی ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور
जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह की रहमतों का ख़ास नज़ूल होता है। और शयातीन जो हैं, शयातीन जिन, शयातीन, उन्हें जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। और आपने देखा, हम सब देखते हैं कि जो ही माह रमज़ान मुबारक का पहला दिन चांद रात नज़र आती है, हमारी मस्जिदों की रौनकें दुबाला हो जाती हैं, मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है और लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने रब की बारगाह में जाएं, सर सजदे में रख के अपने रब को याद करें, सुबहाना रब्बी यल आला पढ़ें। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। तो अल्लाह की ख़ास रहमतें माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ख़ास रहमत फरमाता है अपने बंदों पे, क्योंकि एक रोज़ा रखना इतना बड़ा अजर माह रमज़ान मुबारक का कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे ने, सरकार ने फरमाया, अल्लाह के सोने नबी ने फरमाया, जिसने एक रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि रोज़े में कोई दिखलावा रियाकारी तो आती नहीं, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान राज की बात है। या अल्लाह जानता है या बंदा जानता है कि जिसने रोज़ा रखा, तो अल्लाह के सोने नबी ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दोज़ख से इतना दूर फरमा देता है, बचा देता है, जैसे ज़मीनों आसमां में ये फासला है। इतनी दूर खंदक, यानी कि इतनी दूर उसको, अपने बंदे को दूर ले जाता है जन्नत से। तो माह रमज़ान मुबारक की रक्षा बड़ी बरकतें हैं, बड़ी ख़ास रहमतें हैं, बेशुमार फजीलत है माह रमज़ान मुबारक की। तो पहले अशरा की मैंने आपके सामने जो दुआ अर्ज़ की, ये बड़ी ही प्यारी दुआ है, इसको हमें याद करना चाहिए, अपने बच्चों को याद कराएं, अपने घर वालों को, अपने सभी मुसलमानों को इसकी दुआ की, क्योंकि ये मसनून दुआ है। रब्बी गफिर, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, रब्बी गफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान मुबारक की सही सही मानों में कदर की तौफीक दे। जी नाज़रीन ग्रामी, आज के हमारे एक और नात खां हमारे दरमियान मौजूद हैं और माशाल्लाह आज दोनों नन्हे सना खां हैं, कम उम्र सना खां हैं, लेकिन आवाज़ में अपना कमाल रखते हैं। मैं मोहम्मद हामिद रज़ा से मुल्तमिस हूँ कि वो बारगाह रसालत में अपनी हाज़िरी लगाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, बस गई है सीने में, जिसमें तो यही है अपना, जिसमें तो यही है अपना, दिल तो है मदीने में, जिसमें तो यही है अपना, दिल तो है मदीने में। और कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, जो महशर में भी कहता है, महशर में भी कहता है, जाना है मदीने में, महशर में भी कहता है, जाना है मदीने में। हाँ
मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जाना दिल से प्यारा है मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हर शक आँखों का तारा मदीना, हर शक की आँखों का तारा मदीना। और बाद मेरे मरने के सारे लोग यूं बोले, बाद मेरे मरने के सारे लोग यूं बोले कि आदमी वो अच्छा था, आदमी वो अच्छा था, जो मर गया मदीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, भीड़ है फकीरों की। एक दिन वाला है, एक दिन वाला है मेरा आका, एक दिन वाला है ज़हरा का बाबा, एक दिन वाला है हसनैन का नाना, एक दिन वाला है सारा जग सवाली है, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहम्मद हामिद रज़ा जो है वो बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। नस्ल गमी रमज़ान में जैसे कि कारी साहब ने बयान फरमाया कि शयातीन को कैद कर लिया जाता है, हमें नेकियां करने में आसानी होती है, और जब नेकियां करने में आसानी होती है मेरे रब का ख़ास करम देखिए कि रब ताला जो है उन नेकियों का अजर जो है वो भी बढ़ा देता है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ी है मोहम्मद हामिद रज़ा ने, मदीने का बड़ा ख़ास इसमें ज़िक्र था, और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहा करता हूँ कि जब कभी मदीने की बात होती है रक़्स में सारी कायनात होती है। सुभान अल्लाह। तो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं कारी मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब, इनसे हम रमज़ान के हवाले से मज़ीद फ़ज़ाइल के हवाले से पूछते हैं। कारी साहब बेशुमार रमज़ान में हमारे पास बरकतें हैं, रहमतें हैं, कुछ चंद बरकतों रहमतों का मज़ीद तज़किरा जो है वो आज के प्रोग्राम में कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान मुबारक की ख़ास बरकतें, रहमतें, नीमतें हैं। माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने वाले की इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआ करती हैं। समंदर की मछलियाँ रोज़ादार के लिए दुआ करती हैं। तो प्यारी बात, अल्लाह के नबी ने समंदर के बारे में फिर मछली एक का जिक्र नहीं फरमाया, फरमाया कि मछलियाँ जो हैं, जमा का सीगा है कि मछलियाँ रोज़ेदार के लिए, समंदर की मछलियाँ रोज़ेदार के लिए दुआ करती हैं। तो कितना प्यारा ये अमल है कि जिसके लिए दरिया की मछलियाँ भी दुआ कर रही हैं, और हवा में उड़ने वाले परिंदे रोज़ेदार के लिए दुआ करते हैं। और कितना प्यारा ये अमल है रोज़ा रखना। माह रमज़ान मुबारक की कितनी फजीलत है कि रोज़ेदार रोज़ा रख के जब सो जाता है तो अल्लाह के सोने नबी ने फरमाया कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत में शुमार होता है। मेरे रब की इतनी रहमत वसी है, वो इतना मेहरबान है, वो इतना करीम रब है कि उसको पता है मेरे इस बंदे ने रोज़ा रखा है। अल्लाह फरिश्तों को कहता है, फरमाता है कि देखो मेरे इस बंदे को, इसने सुबह से लेकर शाम तक इसने न कुछ खाया न पिया, न इसने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी की, इसने सब कुछ छोड़ा सिर्फ मेरी रज़ा के लिए।
इसने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि इसने मेरे लिए रोज़ा रखा है और मैं ही इसको जज़ा दूंगा। दूसरी रवायत में इस तरह भी आता है कि उज्जा का लफ्ज़ भी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि इसने मेरे लिए रोज़ा रखा है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। मतलब क्या कि अल्लाह उसे मिल जाता है, रोज़ा रखने वाले को अल्लाह मिल जाता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मदीने के ताजदार ने, मक्के के शहनशाह ने, आपने फरमाया कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ होती हैं। रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलेंगी। एक तो फरमाया कि जब अफ्तार का वक़्त होता है, अफ्तार के वक़्त सारा साल खाना खाने में, पीने में, क्योंकि अल्लाह मेहरबान है, हर अपने बंदे को, पूरी कायनात को अता फरमाने वाला है, अल्लाह ही अता फरमाता है। तो अल्लाह सबको देता है, हम सब खाते हैं पीते हैं, लेकिन पूरा साल 11 महीने हम खा खा के हमें वो मज़ा, वो सुकून नहीं आता जितना मज़ा, सुकून, मोहब्बत और ये खुशी होती है अफ्तार के वक़्त रोज़ादार को। बात है रोज़ादार की, जिसने रोज़ा नहीं रखा उसको तो बड़ा अफसोस लगता है उस वक़्त, वो तो बेचारे का उस वक़्त मुंह देखने वाला होता है कि जिसने रोज़ा नहीं रखा। तो जिसने रोज़ा रखा होता है, सुबहान अल्लाह, क्या शान है उसकी, और उसके दिल में इतनी खुशी होती है, इतना वो खुश हो रहा होता है कि जो ही हुक्म आएगा रोज़ा अफ्तार करने का, उस वक़्त मैं रोज़ा इफ्तार करूँगा, चाहे उसके सामने जो कुछ पड़ा हो, इतने इतने मशरूबात खाने के लिए, पीने के लिए, हर तरह की नेमतें पड़ी होती हैं, लेकिन उसको कोई कैद भी देना, कोई 2 लाख रुपया ले ले कि रोज़ा खोलने से पहले तू ये कुछ खा ले, जिसको पता है रोज़े का कभी भी वो ये सौदा नहीं करेगा। उसको पता है जो मैं ये अपना रोज़ा इफ्तार करने का वक़्त मेरा करीब है, जब वो सब कुछ होता है, वो खाता नहीं। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी उसके दिल में होती है, जो ही वो इंतज़ार कर रहा होता है कि जो ही आवाज़ आएगी कि रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार कर दो, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के वो साथ दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरत। तो ये दुआ करके फिर वो इफ्तार करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोज़ेदार को इफ्तारी के वक़्त बड़ी खुशी होती है। और दूसरी खुशी के बारे में सरकार ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब रोज़ेदार को अल्लाह से मुलाकात होगी, जब मुलाकात अल्लाह से करेगा, इस वजह से मुलाकात होगी कि ये रोज़ेदार था, तो उस वक़्त उसे बेहद खुशी होगी कि जब अल्लाह का दीदार होगा, मुलाकात होगी, तो इससे बड़ी और खुशी क्या है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मुसलमान भाइयों, मैं यही गुजारिश है कि आइए हम माह रमज़ान मुबारक की सही मानों में कदर कर लें। आज हमारे पास भी ये वक्त है, जो सांस बाकी हैं इन्हें गनीमत जानिए। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अगर हम ही ना मांगे उसके हाँ तो कमी नहीं, अगर हमारा ही दामन तंग है, अल्लाह के हाँ तो कमी नहीं, उसके खजानों में कमी नहीं, उसकी रहमत तो वसी है। फिर माह रमज़ान मुबारक में किबला डॉक्टर साहब पहले फरमा रहे थे कि फर्जों का दर्जा 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, नफलों का सवाब फर्जों के बराबर अल्लाह अता फरमाता है। इतना मेहरबान है, एक लफ्ज़ कुरान का पढ़ेंगे अल्लाह 10 नेकियां देगा, और एक नेकी को अल्लाह 70 गुना बढ़ा देता है। और तीसरे पारे में आता है, जैसे कि मिसाल दे के फरमाया कि कोई बंदा दुनिया में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह 1 के बदले में मिसाल दी कि जैसा कि ज़मीन में 1 दाना बोया, 1 के बदले में अल्लाह उसमें से 7 असनाबिल 7 बालियां निकालता है, और उन 7 बालियों में फी सुम्बुलातिन मियतु हब्बा, फरमाया कि उन 7 बालियों पे एक सिक्का लगाता है, और एक सिक्का में अल्लाह 100 दाने, मियतु हब्बा, मिया कहते हैं 100 को, हब्बा कहते हैं दाने को, फरमाया कि एक सिक्के से अल्लाह 100 दाने अता फरमाता है।
زمین میں بویا تھا ایک دانہ، اس کے بدلے میں اللہ نے دیا 700 دانے دیے۔ یہی مثال ہے نیکی کی، یہی مثال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کہ بندہ نیکی ایک کرتا ہے اور ماہ رمضان مبارک میں 700 گنا۔ اور صوفی بزرگ تو فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو اس سے بھی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کا جو پروگرام ہے وہ آستانہ عالیہ بابا فرید گنج شکر کے تعاون سے اور محبتوں سے جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے خواہش ظاہر کی خلیفہ سے، جتنے بھی ان کے خلیفہ ہیں، کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئیں، ہمارے پروگرام کی زینت بنے اور آپ کے جو علم ہے، جو آپ کی اسٹڈی ہے، اسے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیجیے۔ ناظرین گرامی، مندی بہاؤدین، لاہور، اسلام آباد، گجرات اور جہلم میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور باقی تمام روزہ دار، باقی تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا انشاءاللہ۔ یہ سعادتوں کی گھڑیاں ہیں، ہم چند ہی لمحوں بعد جو ہے وہ دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا ہمارا مل بیٹھنا اور ذکر کرنا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔